Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for board students. I am going to talk about Mendel's conclusion on dihybrid cross. What is dihybrid cross? The cross between two individuals by taking two contrasting traits. That is the dihybrid cross. In previous video lecture I have described you the monohybrid cross and dihybrid cross. Suppose that the two individuals in which the single contrasting traits you are taken out for your experiment, there will be the monohybrid cross. Mendel's identify 7 contrasting traits among the pea plants. There was the plant's height, flower color, flower position, seed color, seed shape, pod color, pod shape. There are 7 contrasting traits identified by the Mendel, and among them he find the dominant and recessive in each traits. In first experiment, Mendel's taken out the height of plants and concluded the two different laws. The first law, law of dominance, and second law, the law of purity of gametes or law of segregation. It was over in previous video lecture. In previous video lecture, I have performed the experiment for dihybrid cross. For dihybrid cross, Mendel taken out the two individuals. One was pure dominant and another was pure recessive. But he taken the two contrasting traits, the seed color and seed shape. Among seed color, the dominant and recessive can be seen. The yellow color seeded plants was dominant over green color seeded plants. Among seed shape, the dominant and recessive can also be seen. The round seeded plants are dominant over the wrinkled seeded plants. That was the actual experiment. After getting the cross between the round yellow, pure round yellow and pure wrinkled green seeded plants, he finds the similar result as like in monohybrid cross. That is, the F1 progeny follow the dominancy. That is, the all plant in F1 generation was pure round yellow. That can be seen, but genetically they was hybrid. In F2 generation, Mendel find very interesting result. That was about the 556 seeds collected in the F2 generation, and among the 556 seeds, Mendel find the 315 seeds was round yellow. 108 seeds was round green. 101 seeds was wrinkled yellow. And 32 seeds was wrinkled green. It means, according to Mendel's laws of dominance, the recessive characters always will be in very low percent, but they express when they get chance. Even though in F1 generation, the wrinkled green plants do not get any kinds of chance, but in F2 generation, after getting chance, he expressed as 32 in numbers. Among the 315, 108, 101 and 32, the expected ratio, the expected phenotypic ratio, because these are the phenotypic characters. Later I will describe you whatever the genotypic characters. After getting the result between 315, 108, 101 and 32, Mendel found that the ratio, expected ratio was 9:3:3:1. 9:3:3:1, and that ratio was called dihybrid ratio. Dihybrid ratio. It is also known as the phenotypic ratio. Phenotypic ratio of dihybrid class. Dihybrid class. And it is very important. This ratio is very important and may be asked in examination by any way. So let I define you. Mendel on his second experiment concluded the third law. That law was laws of free recombination or laws of independent assortment.
So what laws was actually Mendel concluded on his second experiment? It may be asked. Laws of free recombination. Free recombination or law of independent assortment. It is popularly known as Mendel third law. Laws of free recombination, laws of independent assortment, and laws of Mendel's third law. That laws are totally based on the dihybrid ratio. And according to this law, let I define the Mendel's third law. According to this law, पहले तो इसके बारे में आपको लिख देना है. इसके बारे में आपको क्या लिखना है? This law of Mendel based on dihybrid ratio in F2 generation. This law of Mendel was based on dihybrid ratio in F2 generation. And according to this law, when inheritance of two or more than two genes occurs at a same time, then their distribution in gametes, and progeny of subsequent generation remain, this will be the R, remain independent. It means when inheritance of two or more than two genes occurs at the same time, then their distribution in gametes and progeny of subsequent generation remain independent. If the examination question appears explain Mendel's third law, then this will be the exact definition. Before it, you need to write the Mendel's third law or laws of independent assortment based on the dihybrid ratio in F2 generation. After getting cross between pure round yellow and pure wrinkled green in F1 and later then in F2. Now back to what was the paper pen conclusion by Mendel. This was the practical application and result that is performed over the garden, around the garden, and that is actually the phenotypic ratio that can be seen in the plants. But whatever the genotypic expression, what was the pen paper expression, later you need to draw it because that was very important for board purpose. So let I begin the cross from F1 and later bring into the F2 generation. Listen, let's check the cross. Cross P1 phenotype and P1 genotype. P1 phenotype was round yellow, round for round seed and yellow for yellow seed. यहाँ round yellow seed नहीं लिखेंगे, टाइप लगेगा. And P1 second was wrinkled yellow, wrinkled green, not yellow. One was round yellow and second was wrinkled green. It means one was pure dominant and other was pure recessive. Pure recessive means there was no any small letter.
Now the round yellow, the genotype was round yellow was capital R and capital Y. As you all know, for single contrasting traits there is a need of two genes because genes and chromosomes both are in equal pairs. तो ये राउंड के लिए हो गया एक पेयर, एक सेट, और ये येलो के लिए, ठीक है। गैमीट्स में यही चीज आधे यानी कि से सिर्फ एक आर होगा और एक वाई होगा, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिए, जब गैमीट्स बनाते हैं तो मेन बॉडी के कंपेयर में क्रोमोसोम्स आधा हो जाता है, यानी कि मेन बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है तो गैमीट्स में कितने होंगे 23। अगर हम मेन बॉडी में किसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के जीनोटाइप की बात करें तो वो पेयर में होगा, तो वो अगर जैसे हमारे लिए टाल है तो कैपिटल टी होगा, तो हमारे गैमेट्स में उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होंगे सिर्फ कैपिटल टी, एक ही बार कैपिटल टी होगा, ठीक है। गैमेट्स में मेन के कंपेयर में जो जीनोटाइप है वो भी और क्रोमोसोम्स वो भी दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों आगे हो जाते हैं। अभी मैं कंक्लूजन समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नहीं जानना कि केवल आर और वाई लिख देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। आर अलग है, वो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स राउंड के लिए, उसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव, और ये वाई है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कलर के लिए, ठीक है। तो ये आप जानना है, कैपिटल आर राउंड के लिए, राउंड सीट के लिए, और वाई ये तुम्हारा कलर के लिए, कलर ऑफ सीट के लिए। ऐसे ही अब आते हैं रिंकल्ड ग्रीन की मैं बात कर दूं तो ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये क्रॉस करेंगे आपस में, माने इसका क्रॉस इससे होगा, ठीक। तो इसका क्रॉस जब इससे होगा तो उससे पहले क्या बनेंगे, उससे पहले गैमेट्स बनेंगे। तो ये प्योर है और वो भी प्योर है। जब कोई भी फिनोटिपिक का जीनोटाइप प्योर होता है अपने लिए तो उससे सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट्स बनते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, P1 गैमेट्स। ये बातें वहां पे नहीं लिखे थे मोनोहाइब्रिड में। मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी था एक प्लांट का, दूसरा स्मॉल टी था, तो इससे जितने भी गैमेट बनेंगे कैपिटल टी वाले बनेंगे। अब इससे जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इससे जितने भी गैमेट्स बनेंगे उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई ही होगा, चाहे आप एक बार लिखे चाहे 72 बार लिखे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे। इससे जितने गैमेट्स बनेंगे उसमें भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा। ये गैमेट्स है, दिमाग में रखो, ये इसका गैमेट्स है, ये गैमेट है और ये भी गैमेट ही यूज करता है। अब दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस, P1 क्रॉस। अब P1 क्रॉस होगा तो क्या आएगा, F1 रिजल्ट। तो दोनों बातें देख लेते हैं। P1 क्रॉस जब आप करवाएंगे तो ये R अपने R वाले के साथ जाएगा, हमेशा R के साथ जाता है, और Y के, किसमें, मेन बॉडी में आर जो है मतलब एक तरह का जो जीन्स है वो अपने ही तरह के, माने जो शेप के लिए जीन्स है वो शेप वाले जीन्स के साथ जाएगा, चाहे भले ही वो स्मॉल जीन्स हो। जो कलर के लिए जीन है वो कलर के लिए जाएगा, ठीक है ना। कान के कलर के लिए है तो कान के कलर के लिए कान वाला जीन जाएगा, आंख के कलर के साथ नहीं जाएगा। तो अभी देखो ये शेप है, शेप वाला जीन्स है कैपिटल आर, और इसमें शेप वाला जीन्स है स्मॉल आर है। तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और वाई के साथ चला जाएगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि ये फिर से एक नई बॉडी बन गई, अगर यही चीज अगर 3-4 बार लिखते तो यही चीज 3-4 बार आता। हमने एक ही बार इसको क्यों बताया, इसलिए बताया कि ताकि एक ही टाइप के जीन्स अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए कि एक ही टाइप का जीन्स है तो इसको एक ही टाइप में लिखिए चाहे कई बार लिखिए, ठीक है। अब ये दिमाग में पता है कि ऐसा कई बार हुआ होगा, ऐसा कई रिजल्ट आया होगा। ये एक प्लांट है, ये मेंडल ने एक प्लांट गेट किया, मतलब एक प्लांट मेंडल को मिला, ठीक है। ये भी प्लांट था, लेकिन ये प्लांट नहीं था, ये क्या था, प्लांट के अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स था उसका आप मान लीजिए उसके अंदर का कंस्टिट्यूएंट्स, और प्लांट के अंदर जो एग था ये पॉलिन ग्रेन को मान लीजिए और ये एग को मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई। तो जो प्लांट गेन हुआ उसमें जो फ्रूट लगा, फ्रूट और उस फ्रूट के अंदर जो सीड मिला वो सब राउंड येलो थे। क्या थे, राउंड येलो। किसमें, F1 जनरेशन, सब के सब F1 जनरेशन में राउंड येलो वाले थे। लेकिन मेंडल ने जब कॉपी पेन पे इसका रिजल्ट लिखा तो इस तरह का रिजल्ट है, यानी कि ये जेनेटिकली राउंड येलो प्योर नहीं थे,
भाई राउंड येलो क्यों थे? क्योंकि एटलीस्ट एक कैपिटल आर आया था इसलिए राउंड था, और एक कैपिटल वाई आया था इसलिए येलो था। स्मॉल आर भी है और स्मॉल वाई भी है, लेकिन उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा। एक ही कैपिटल आर या एक ही कैपिटल वाई उसको राउंड येलो बनाने में कैपेबल है। अब मेंडल ने क्या किया कि F1 का एक प्लांट सेलेक्ट किया, एक ही प्लांट, और उसी का पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे छिड़क दिया। तो ये पॉलन ग्रेन में ध्यान सुनो, पॉलन ग्रेन जिससे बनेगा पॉलन मदर से, उसमें भी यही क्रोमोसोम होगा, यही कंस्टिट्यूएंट्स होगा, और जो उसका एग सेल बनेगा, बनाने वाली जो मेगा स्पोर मदर सेल है, उसमें भी यही कंस्टिट्यूएंट्स होगा। यानी कि अब इसको फिर आधा करेंगे, इसको जब आधा करेंगे, इसको जब इससे गैमेट्स बनाएंगे तो हमको मिलेगा F1 गैमेट्स, और उसका उसमें हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? F2 क्रॉस, F1 क्रॉस, और उसके बाद F2 रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अब हमको F1 जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये मिला। अब इससे अगर हम इसमें सेल्फ क्रॉस करवाएं, यानी दूसरा लेंगे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक वाले से गैमेट्स कितने बनेंगे। भाई इससे पहले हम गैमेट्स बनाए तभी तो क्रॉस करवा के ये रिजल्ट आया। तो इससे पहले हम गैमेट्स बनवाएंगे तो क्या लिखेंगे? F1 गैमेट्स, और F1 गैमेट्स का मिला, उसको चेक कर रहा है। ध्यान सुनो, जब कोई भी क्रोमोसोम, कोई भी जीनोटाइप प्योर हो, जैसे यहाँ पे देखो दोनों कैपिटल और दोनों वाई वाई है, तो एक ही टाइप का गैमेट्स बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्योर नहीं है, यहाँ पे क्या है? प्योर नहीं है, तो यहाँ पे हमको दो टाइप के गैमेट्स नहीं बनेंगे। अगर ये सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होगा तो दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कैपिटल T स्मॉल t वाला भी टाल था, और उससे जो गैमेट्स बने थे वो एक में कैपिटल T था और दूसरे में स्मॉल t था। यानी कि अगर सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हाइब्रिड है, ध्यान से मेरी बात को, ये वाला लाइन सुने, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हाइब्रिड है, ठीक है, और उससे गैमेट्स बनेंगे, उससे क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। तो दो टाइप के बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक कैपिटल T, एक स्मॉल t। लेकिन अगर टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है और वो हाइब्रिड है तो उसका मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 4 टाइप्स गैमेट्स बनेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर वो सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है और वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए परफॉर्म कर रहा है, और वो जो सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाला है वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड टाइप है, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t वाला टाल है, तो उससे जो गैमेट्स बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। लेकिन अगर वो टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाला है और हाइब्रिड है तो उससे 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो इससे जो 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कौन कौन बनेंगे? इसी से 4 तरह के गैमेट्स कैसे कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। एक तो तुम्हारा कैपिटल R कैपिटल Y वाला है, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक। एक था कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है, एक था स्मॉल r कैपिटल Y, और एक था स्मॉल r स्मॉल y। तो 4 तरह के गैमेट्स इसी से बन गए, 4 तरह के गैमेट्स, ये गैमेट्स है। अब तुम कहोगे कि गैमेट्स में इतने सारे वेरिएशन कैसे आ गए, ठीक है। यहां पे देखो, जब ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लेंगे तो गैमेट्स में दो जीनोटाइप जीन्स रहेंगे। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिया तो दो जीन्स थे, इसमें भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, तो सब में दो जीन्स है। लेकिन वेरिएशन कहाँ देखने को मिल रहा है? लेटर चेंज हो रहे हैं, कहीं पे कैपिटल R है तो दूसरा कैपिटल Y है, कहीं पे कैपिटल R पहला तो दूसरा स्मॉल y है। तो ये वेरिएशन मिल रहा है, इससे मिला तो इससे भी तो मिलेगा, तो इससे भी वेरिएशन मिलेगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे हम, यानी कि सारे जीन्स उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 16। पहले देखा था कि दो तरह के गैमेट्स बनेंगे तो पुनेट का 4 डब्बा बनाए थे। अब ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 4, यानी कि ये इससे 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 मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इससे 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 मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये इससे 4 प्रोजेनी बनेंगे, उससे पहले वाले से मल्टीप्लाई करेगा 4 इससे 4 इससे, ठीक है, सबसे 4 बनेंगे तो क्या होगा? 16 हमको रिजल्ट मिलेंगे F2 में, जो जिसके लिए हमको 16 बॉक्स बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, आप गैमेट्स याद कर लीजिए कि F2 के लिए F1 से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स के। ईच पॉलन ग्रेन्स हैज आइदर R कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यानी कि पॉलन ग्रेन में 4 तरह के पॉलन ग्रेन बनेंगे, एग सेल में 4 तरह के एग सेल बनेंगे। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है, और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट F2 में जो आएगा वही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसको इरेज कर देते हैं और फिर बनाते हैं 16 खानों वाला बॉक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जानना है। ठीक है, अब आते हैं F1 क्रॉस F2 रिजल्ट्स पे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है, एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा और जो सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अगर F1 में रिजल्ट दे रहा है और वो हाइब्रिड है, तो उससे 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे और उसमें जो रिजल्ट आएगा वो 4 तरह का रिजल्ट बनेगा। तो सिमिलरली अगर वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स और वो हाइब्रिड है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाला कोई भी फिनोटाइप अगर हाइब्रिड है, अपने आपके लिए प्योर नहीं है, तो उससे 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे और सामने वाले में भी 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। यानी कि जब 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 तरह के रिजल्ट आएंगे। तो 16 क्रॉस 16, यहाँ पे मैंने डब्बा बना दिया, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ये 4 गैमेट्स उधर एक टाइप के 4 गैमेट्स इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसे हौच पौच करने से हमको रिजल्ट नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप कितने टाइप के रिजल्ट मिले, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अब यही चीज यहाँ पे लिखना है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। अब यहाँ पे आते हैं स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करवाते हैं। अब ये देखो R से R चला जाएगा, कैपिटल R से कैपिटल R और कैपिटल Y से कैपिटल Y। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब यही चीज इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करवा रहे हैं, तो कैपिटल R, अब ये कैपिटल Y स्मॉल y। अब यहाँ पे देखो कैपिटल R ये हो जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल R और स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल, कैपिटल Y इसकी वजह से स्मॉल y इसकी वजह से। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करवाते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y उसका उतरेगा और स्मॉल y इसका उतरेगा। ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, अभी देखो कैपिटल R उधर स्मॉल r, अब इधर देखो स्मॉल y उधर कैपिटल Y। ठीक है, अब ये देखो कैपिटल R, ये देखो स्मॉल r, अब ये देखो स्मॉल y और यहाँ पे देखो स्मॉल y। ठीक है, ये चीज आप देखते रहिए, मल्टीप्लाई आपको ही करना है। ये कैपिटल R स्मॉल r, ये देखो कैपिटल Y उधर देखो कैपिटल Y। अब ये देखो स्मॉल r और उधर कैपिटल R, इधर देखो कैपिटल Y उधर स्मॉल y। ठीक, अब इधर देखो स्मॉल r उधर स्मॉल r, और इधर देखो कैपिटल Y उधर देखो कैपिटल Y। ठीक है, इधर देखो स्मॉल r उधर स्मॉल r, यहाँ क्या है कैपिटल Y उधर स्मॉल y। ठीक, अभी आते हैं इधर कैपिटल R स्मॉल r, इधर देखो स्मॉल y उधर कैपिटल Y। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई पूरा उससे करते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, इधर स्मॉल y उधर स्मॉल y। ठीक है, अभी देखो स्मॉल r उधर स्मॉल r, उधर कैपिटल Y और इधर स्मॉल y। अब इधर देखो स्मॉल r और इधर देखो स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, तो ये हमको जीरो टाइप मिल गया। अब सारे डब्बे में हम चेक करेंगे कि कौन से डब्बे में एक एक कैपिटल R आया है, वहां आप आंख बंद करके राउंड लिख दीजिए। तो यहां पर चेक करते हैं, ये देखो ये यहाँ कैपिटल R आया है, दूसरे से मतलब नहीं है, तुरंत आप राउंड लिख दीजिए। कैपिटल R आ रहा है राउंड, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से एग्जाम में भी लिख लीजिएगा। यहाँ कैपिटल आ रहा है, तुरंत आप राउंड, पहले आप R पे फोकस करेंगे। कैपिटल आ रहा है, तुरंत क्या लिखेंगे, राउंड। ठीक है, कैपिटल आ रहा है, तुरंत राउंड लिख दीजिए। कैपिटल आ रहा है, तुरंत आप राउंड लिख दीजिए। ये क्या है, राउंड। यहाँ क्या हो जाएगा, राउंड। यहाँ पे देखिए राउंड, और यहाँ पे भी राउंड। यहाँ राउंड नहीं होगा, यहाँ भी राउंड नहीं होगा, यहाँ राउंड होगा और यहाँ राउंड होगा, इसके बाद राउंड है। अब आप क्या करेंगे,
जहां अब वाई का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कहीं भी अगर कैपिटल वाई आया है तो वहां येलो लिख दीजिए फट से, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल वाई आया है येलो, कैपिटल वाई आया तुरंत आप येलो लिख दीजिए। क्या आया? कैपिटल वाई येलो। यहां पे भी कैपिटल वाई है, येलो लिख दीजिए। ठीक है, यहां पे भी कैपिटल वाई है, येलो। यहां पे कोई कैपिटल वाई नहीं है, यहां पे कैपिटल वाई येलो। यहां पे भी कोई कैपिटल वाई नहीं है। ठीक है, यहां पे कैपिटल वाई है, येलो। यहां पे देखिए येलो। यहां पे राउंड वगैरह लिखा नहीं गया है तो सीधे आप येलो लिखिए। यहां पे भी येलो। ठीक है, अभी आते हैं, यहां पे भी येलो और इधर येलो नहीं, यहां पे येलो, यहां येलो नहीं है। अब आते हैं कि चेक करते हैं कौन से डब्बे में दोनों स्मॉल आ रहा है। वहां पे तुरंत आप क्या लिख दीजिए? रिंकल्ड। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो ये डब्बा के साथ दोनों स्मॉल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। ठीक है, यहां पे देखिए रिंकल्ड, यहां क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। अब कौन से डब्बे में दोनों स्मॉल वाई है वहां पे ग्रीन लिख दीजिए फट से। यहां पे देखिए इधर देखिए दोनों वाई वाई स्मॉल है, ग्रीन। इस लाइन में कोई छूटा नहीं, यहां पे देखिए ग्रीन। ठीक है, इस लाइन में कोई नहीं है, यहां पे देखिए ये ग्रीन, यहां पे ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे सभी के सभी डब्बे में जीनोटाइप और उसके फिनोटाइप भरा गया। रिजल्ट भी कैसे आया सबको मालूम चल गया। अब आपको क्या करना है? रिजल्ट यहां लिखना है। रिजल्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहां F2 रिजल्ट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं राउंड येलो कितना आया है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? राउंड येलो कितना आया है। देखो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर के 9 टाइम्स राउंड येलो आया। ठीक है, सेकेंड अब देखते हैं राउंड ग्रीन कितना टाइम आया। राउंड ग्रीन चेक करते कितने टाइम आया। तो ये 1 2 3 टाइम्स राउंड येलो आया, राउंड ग्रीन आया 3। थर्ड रिंकल्ड येलो कितनी बार आया है, इसको चेक करते हैं। रिंकल्ड येलो, इसमें देखिए ये रिंकल्ड येलो 1 2 एंड 3 टाइम्स आया है। बिना आंख बंद किए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिंकल्ड ग्रीन को चेक करते हैं। रिंकल्ड ग्रीन को चेक करते हैं, वो कितने टाइम आया? एक ही बार आया। ठीक है, तो ये 1 टाइम है। ये चीज आपको जानना है, यहां से सारी चीजें समझ लेनी है कि यहां हर एक कंडीशन में जितने भी पॉइंट्स हैं, ध्यान सुनिए, जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक कंडीशन में हमको क्या मिला है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, हर एक कंडीशन में हमको जीनोटाइप फिनोटाइप सब में मिला है। और इससे जो एक्सपेक्टेड रेशियो आया है वो कितना आया है? 9:3:3:1। यानी कि ये 9:3:3:1 जो है ये क्या है? रेशियो F2 फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक अगर देखना हो तो ये देख लीजिए कितनी बार है, ये देख लीजिए कितनी बार है, यानी कि जीनोटाइपिक लंबा हो जाएगा जो है नहीं सिलेबस है। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस वी कैन सी दैट the more than 2 genes if inherited with each other then their distribution in gametes and progeny of subsequent generation remain independent. I hope your concept regarding the dihybrid ratio, dihybrid class is clear. If you have any doubt then be patient and next in live classes I will discuss about that. The topic related to Mendel's law is over. Now only one topic is remaining in our syllabus, that is sex determination.
that will be discussing next upcoming lesson. For class 10 and for class 12 there are so many topics is still being processed.